Hello everyone there. Welcome back. I am Shweta and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2, Introduction to DBMS. DBMS stands for Database Management System. In this chapter, we are going to see how to create database and manage the database using DBMS software. So, let's begin. In today's lecture, we are going to learn first definition of database. Then we will see data versus information, that is difference between data and information. Then we are going to study what is database management system, and lastly we will see applications of DBMS. So let's begin. So the first thing which we are going to study in today's lecture is what? It is nothing but database. So before studying the definition of database, I would like to give you the examples of database which you come across in your day-to-day life. For example, bank. In bank, if you are having the account number and when you give the account number to the person who is sitting in the bank and you ask that person to give the record of your bank, means if you want to know the balance of your how much balance is in your account, then by giving the account number they enter just the account number and gives the details to you. This is because of database. So in bank's database your record is filled there. Okay, so कैसा होता है कि बैंक में आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव रहता है. That's why whenever you are entering the account number, you are going to get the details of your record, that is your name, your mobile number, your address, your balance, transaction history, all that things you will come to know. This is because of database. So your record is saved in the database. That's why everything related to your account number you are going to get the details. Why it is so? See, सबसे पहले आप जब बैंक में जाते हो, आप नया अकाउंट ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, एक फॉर्म फिल करते हो. आप डेटा, आप कंप्यूटर में कुछ नहीं एंट्री करते हो, आप क्या करते हो, आप एक फॉर्म फिल करके बैंक में देते हो. तो बैंक क्या करता है, जो भी बैक ऑफिस में काम करेंगे उन सबको वो फॉर्म्स, जो भी नया अकाउंट रहेगा उसके फॉर्म्स दिए जाते हैं. देन दे एंटर ऑल योर डिटेल्स इन देयर डेटाबेस and thus your account gets created in the database or your accounts get saved in the database. Okay, so इसी तरह से this is one of the example. Likewise you can see many examples like railways, they are also maintaining the database. That's why whenever you are entering the PNR number of your ticket, you come to know the details of the टिकट. ओके, आप पीएनआर नंबर एंटर करोगे तो आपको टिकट का डिटेल्स पता चल जाता है कि कौन से ट्रेन का टिकट है, कौन कितने लोग, कितने पैसेंजर्स है, सीट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ट्रेन लेट है या टाइम पे है, या फिर डिपार्चर कभी है, अराइवल कभी है, डिफरेंट ट्रेन नंबर्स, ऑल दिस यू कम टू नो बिकॉज ऑफ द डेटाबेस. Okay, so similarly colleges is also maintaining the database, libraries are also maintaining the database, hospitals are also maintaining the database. So this is all the data which are collected together and kept in the database. Okay, so now we will see the definition of the database.
Database is a collection of interrelated data which helps in efficient retrieval, inserting and deleting of data. So this is very important term, interrelated. See, it is a collection of interrelated data. Database में एक दूसरे से connection होना चाहिए डेटा का. ऐसा नहीं है कि रेलवे के अंदर आपको बैंक का डिटेल्स मिलेगा या फिर बैंक के अंदर आपको रेलवे का डिटेल्स मिलेगा. ओके, सो बैंक के अंदर हॉस्पिटल का डिटेल्स मिलेगा आपके डेटाबेस में, ऐसा नहीं होता है. सो इंटर रिलेटेड मीन्स दे शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर. बैंक में अगर डेटाबेस है तो बैंक के डेटाबेस में सब थिंग्स बैंक से रिलेटेड ही रहना चाहिए. ओके, रेलवे का है तो रेलवे का ही डेटाबेस रहना चाहिए, कॉलेज का है तो कॉलेज का ही डेटाबेस रहना चाहिए. सो डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, इंटरनली कनेक्टेड होना चाहिए. Okay, which helps in efficient retrieval. Retrieval means to get the details. Okay, if you want the details of the train or your ticket, whatever you have reserved the ticket, and if you want to know the details of everything, then by entering the PNR number you should get the details of your ticket. Okay, so that is called as a retrieval, displaying the data. Inserting means if you want to insert any new record in your database, that also you can do. If you want to delete the record, that also you can do in the database. So what is database? It is nothing but collection of interrelated data which helps in efficient retrieval, inserting and deleting of data. Let us see the example. For example, in exams, marks obtained by the student in subjects is data before it is entered in the report card. So whatever data you get when the teacher comes in the class and declares the marks. Okay, कोई हर एक सब्जेक्ट का टीचर आके आपको पहले सबसे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं देता है. सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम होने के बाद जब पेपर करेक्शन हो जाता है तो टीचर आके आपको एक एक सब्जेक्ट का मार्क्स बताती है. राइट, अपने इंग्लिश टीचर आएगी, इंग्लिश आप टीचर अपना मार्क्स बताएगी, फिर आईटी टीचर आएगी, आईटी टीचर आपको अपना मार्क्स बताएगी, फिर ओसी टीचर आएगी, फिर बीके, लाइकवाइज. ओके, जिस तरह से टीचर्स का करेक्शन हो गया उन लोग अपने अपने मार्क्स बता देते हैं. बट दैट इज नथिंग बट दैट इज अ डेटा, क्योंकि ये सिर्फ टीचर आके बता रही है. आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में सब इन्फॉर्मेशन कैसा होता है, organized way में होता है, meaningful होता है. So that is the information. So in a report card, the combined marks or the data of all the subject speaks about students' performance. Thus, when data is maintained in an organized manner, it becomes meaningful or organized information. So whenever you are getting the report card, then whatever data you see, that is nothing but the information. जो डेटा टीचर ने बताया था वो बराबर अरेंज करके आपको मिला है सब्जेक्ट वाइज, एंड कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला है, तो ये सब डेटा बराबर होता है. उसमें परसेंटेज होते हैं, उसमें एवरेज होता है, उसमें रैंक होता है. सो यू विल कम टू नो. ओके, सो दैट इज इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे एंड इन अ मीनिंगफुल फॉर्म. सो दैट इज अ इंफॉर्मेशन. Okay, so now let us see about data and information. That is, what is the data and what is information. Now let us see data versus information. That is the difference between data and information. So the first point of data is raw facts. So what is data? It is raw facts, means it will be not in a organized way. Raw होता है, raw means कच्चा, means the data will be not in the meaningful way. Human beings won't understand what is the data. Okay, then information is what? Information is processed data. So whatever data is there, when it is processed, then that becomes information. So data जब process होता है तो information form होता है जिसे human being पढ़ सकता है. It is meaningful. Okay, this data is not meaningful, it is not understood, but information, it will be meaningful and it will be understood. Next point, डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. डेटा को देख के आप डिसाइड नहीं कर पाते हो. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टीचर कम्स एंड डिक्टेट द मार्क्स,
दैट टाइम व्हाट हैपन, दैट टाइम यू वोंट कम टू नो कि सच में इतना मार्क्स मिला है या नहीं मिला है। जब आपके हाथ में रिपोर्ट कार्ड आता है और जब उसके अंदर मार्क्स लिखे रहेंगे, देन यू विल बी कंफर्म, ओके, कि हाँ ये मुझे मार्क्स मिले हैं। ओके, सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर्स मार्क्स बता रही है और किसी और का मार्क्स आपने सुना, ओके, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, या फिर टीचर भी बताते समय दूसरे मार्क्स देखते, रोल नंबर्स देखते देखते किसी और का रोल नंबर का मार्क्स बता देगी आपको। सो इससे क्या हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है डेटा के टाइम। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट डिसाइड कि हमको सच में कितने मार्क्स मिले, मुझे कितने परसेंटेज आने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड आवर सेल्फ। ओके, बट what is the case of information? In case of information helps in decision making. यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में रिपोर्ट कार्ड आता है, तो रिपोर्ट कार्ड देख के आपको आपके मार्क्स एक्चुअल कितने मिले हैं वो पता चलते हैं। फिर उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले, मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा या ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से, डेटा इट इज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन information it is going to help you to decide. Okay, then the next point, data could be relevant or irrelevant. तो data appropriate हो सकता है या appropriate नहीं भी हो सकता है। ओके, डेटा कैन बी appropriate और it cannot be appropriate. ओके, मीन्स वो सच में भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जिससे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, टीचर्स मार्क्स डिटेक्ट करे तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि आपने किसी और के मार्क्स सुने हो। ओके, सो डेटा अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन आपने अगर इंफॉर्मेशन देख लिया, यानी आपने अगर रिपोर्ट कार्ड देख लिया, तो आपको पक्का पता चल जाता है कि आपका डेटा अप्रोप्रिएट था या नहीं था, जो मार्क्स आपने सुने थे वो बराबर थे या नहीं थे, वो आपको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पता चलता है। इंफॉर्मेशन हम लोग किससे निकालते हैं? डेटा से ही निकालते हैं, ऑन द बेस्ड ऑफ डेटा, क्योंकि टीचर जो मार्क्स बता रही है वो डेटा टीचर के पास होता है, उससे ही टीचर आपका रिजल्ट बनाती है, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा ओनली टीचर इज गोइंग टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन। सो विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, सो इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा को प्रोसेस करके ही बनता है, इतना याद रखना। सो डेटा नहीं रहेगा तो इंफॉर्मेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ओके, देन एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा। जो भी स्टूडेंट के मार्क्स मिलते हैं वो एक पीस ऑफ डेटा होता है, लेकिन पूरे स्कूल के या क्लास के जो एवरेज स्कोर होता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्कूल और दैट कॉलेज और दैट क्लास। Okay, so this is the example, or even you can say that the students marks in subject wise orally, that is the data, and the report card marks, they are the, that is the information, that also you can say in this case. Okay, so I hope the difference between data and information is clear to you. So data, it is unprocessed, and information, it is processed. Okay, or also we can say that data is a raw. If you are not remembering the word raw, you can also say that data is unprocessed information, unprocessed information, and information is a processed data. Okay, then it helps in, it does not helps in decision making, but information, it helps in decision making. Data could be relevant or irrelevant, but in case of information, we are going to get the information from the data itself. Then example you can give by yourself. Okay, now let's move further and let us see the what is database management system. Now we will see what is this database management system, that is DBMS. So what is the full form of DBMS? Database Management System. A database management system is a software for creating and managing databases. So in case of DBMS, DBMS is a software. ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग डेटाबेस को बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो DBMS क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है। इट इज वन टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग व्हाट? डेटाबेसेस। जो भी डेटाबेसेस हम लोग क्रिएट करने वाले, बनाने वाले हैं और जिसको हम लोग मैनेज करके रखते हैं, वो हम लोग ये सॉफ्टवेयर का यूज करके करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, the DBMS provides users and programmers with a systematic way to create,
retrieve, update and manage data. So DBMS, what it does, it provides users and programmers. Users means जो उसको यूज करता है, programmers means जो बनाता है. ओके, जो डेटाबेस बनाता है वो प्रोग्रामर है और जो उसको यूज करता है वो यूजर है. With a systematic way means वो DBMS जो सॉफ्टवेयर है that is going to provide this users and programmers a systematic way. एक systematic way से वो डेटाबेस को क्रिएट करने का, means how to create the database, फिर retrieve means whatever data if you want, how to get that data, then update करना रहेगा अगर कुछ changes करने हैं, manage करना है data like ascending wise data, descending wise data, date wise, size wise, likewise. Okay, so that is managing the data. So all these things we can do with the help of DBMS. They are going to provide you the systematic way. ये एक systematic way में बताएगा कि किस तरह से create करना चाहिए, किस तरह से retrieve, update, manage, delete everything. Okay, then it stores data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and update information. So it stores data in such a way, वो डेटा को इस तरह से स्टोर करता है कि जो हम लोग को इजी हो जाता है. हम लोग इजीली उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली उसको रिट्राइव कर सकते हैं. रिट्राइव करना मीन्स गेटिंग द डेटा. ओके, सो मैनिपुलेट, रिट्राइव मीन्स व्हाट, getting the data, displaying the data, manipulate the data. Manipulate means हम लोग उसको handle कर सकते डेटा को. Okay, then update the information. If you want to change anything, any information you want to edit it, then you can do it. Okay, so हम लोग डेटा को किस तरह से इजियर वे में स्टोर कर सकते हैं, उसको किस तरह से रिट्राइव कर सकते हैं. रिट्राइव मीन्स यू कैन डिस्प्ले द डेटा, यू कैन मैनिपुलेट मीन्स हैंडल द डेटा, यू कैन अपडेट द इंफॉर्मेशन. ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू इट. ओके, देन the examples. So these are the softwares which are used for the creating of database. So these are the different DBMS. ये different softwares है जिसमें हम लोग database create कर सकते हैं. Okay, like MySQL, Access, Oracle, SQL Server, etc. Okay, so all these are what? These are nothing but software. ये different DBMS software है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो जो सबसे पहले डेटाबेस यूज होता था वो था एक्सेस. ये आपको एक्सेस MS ऑफिस में दिखेगा. ओके, एक्सेस आपको MS ऑफिस में दिखेगा. MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसके अंदर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिले हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, पेंट. ओके, सो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं. तो एक्सेस भी उसी में से एक है जिसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. ये बाकी सब बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले ये डेटाबेस हम लोग एक्सेस में ही क्रिएट करते थे. Okay, so I hope this DBMS is clear to you. Now let's move further and see the applications of DBMS. Applications of DBMS. Applications of DBMS. Applications means nothing but examples where this database management system or this DBMS software is used. यानी कहाँ आप DBMS software का यूज करते हैं, that we are going to see. So यहाँ पे जो मैंने लिस्ट लिखी है वो उतने ही जगह पे DBMS यूज होता है ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा जगहों पर यूज होता है. Okay, so let us see some of the applications which are using the DBMS. First is railway reservation system. Railway reservation system, you know this thing, railway reservation system में भी database use होता है. Database is required to keep record of ticket booking, train's departure and arrival status, status of seats available, etc. Also, if train gets late, then people get to know it through database update. Now see, railway reservation system. Railway reservation system, here also we are using this DBMS. ये सॉफ्टवेयर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने के लिए रेलवेज में यूज करते हैं, जिससे कि आपके पास अगर टिकट है, आपके पास PNR नंबर है, तो आपको टिकट हम लोग
पीएनआर नंबर से देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है टिकट पे। आपके पूरे डिटेल्स, वो पीएनआर नंबर डालने के बाद आपकी डिटेल्स मिलेंगे कि इस पीएनआर पे कितने लोगों का टिकट बुक हुआ है, कितना फेयर है, कहाँ से कहाँ तक है, सोर्स और डेस्टिनेशन। उसी तरह से अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो आपका रिकॉर्ड उस डेटाबेस में फीड हो जाता है, यानी सेव हो जाता है, फिर आप उसको बाद में भी देख सकते हो। उसी तरह से अगर आपको ट्रेन्स के डिपार्चर एंड अराइवल स्टेटस देखने हैं, सो आप सोर्स और डेस्टिनेशन डालोगे तो आपको डिफरेंट ट्रेन्स मिल जाएंगे, फिर आपको उसका डिपार्चर कितने बजे है, उसका अराइवल कितने बजे है वो पता चलता है। फिर अगर आपको सीट्स अवेलेबल है या नहीं ये देखना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी ट्रेन का नंबर नहीं पता तो आप ट्रेन का नाम या फिर आप सोर्स और डेस्टिनेशन लिख के भी आपको ट्रेन के डिटेल्स मिल जाएगी। आप ट्रेन का नाम डालो, आपको ट्रेन का नंबर मिल जाएगा। ओके, उसी तरह से वंस यू आर बुकिंग द टिकट एंड व्हेन इफ सपोज यू वांट टू गो, इफ टुडे इज द डेट यू वांट टू गो, तो आप जाने से पहले आजकल क्या करते हो, पहले घर से ही चेक करते हो, मोबाइल पे या ऑनलाइन आप चेक करते हो कि आज का स्टेटस क्या है, कि आज ट्रेन लेट चल रही है या ऑन टाइम है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट फिर हम लोग घर से निकलते हैं। ओके, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस से हमको अपडेट मिल जाता है कि ट्रेन लेट है, ट्रेन ऑन टाइम है, राइट। सो दिस इज ऑल द थिंग्स ओनली बिकॉज ऑफ द डेटाबेस। सो रेलवेज में जो भी होता है सब डेटाबेस के ऊपर होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डीबीएमएस रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। The next application is library management system. Library management system, there are thousands of books in the library, so it is very difficult to keep a record of all the books in a register. So DBMS is used to maintain all the information related to book issues, dates, name of the book, author and availability of the book. लाइब्रेरी ऑल्सो, इन लाइब्रेरी इफ देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होते हैं, तो उन सबका रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं रजिस्टर में। अगर हम लोग सब बुक्स का नाम लिखते बैठेंगे तो होगा क्या, नहीं, याद भी तो रहना चाहिए। अगर वो डेटाबेस में आपने रखा है तो डायरेक्टली आप नाम डालो या नंबर्स दिए रहेंगे, आप वो डालो तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी बुक है, ये बुक अवेलेबल है या नहीं आपके लाइब्रेरी में। या फिर अगर किसी ने बोला कि मुझे इस ऑथर की बुक चाहिए तो आप वो ऑथर का नाम डाल के चेक कर सकते हो कि ये ऑथर का बुक है या नहीं है, अगर आपको पता है। तो अगर आपको नहीं पता, आपके पास डेटाबेस नहीं है, आपको अगर रजिस्टर में देखना है तो आपको हर एक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि ये नाम का बुक है क्या, ये ऑथर का बुक है क्या। ओके, तो इससे अच्छा अगर वो डेटाबेस में रहेगा तो फाइंड आउट करने के लिए बहुत ईजी जाएगा। उसी तरह से अगर किसी ने बुक इशू किया है तो कौन सा डेट में इशू किया है, उसको कब रिटर्न करना है, वो सब इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस में फिट करके रख सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई इन दिस ऑल्सो इट इज यूज्ड, इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो डीबीएमएस इज यूज्ड। Next, banking. People make thousands of transactions through banks daily and they can do this without going to the bank. So now banking has become so easy that by sitting at home, bank customers can send or get money through banks. All this is possible just because of DBMS that manages all the bank transactions. So in banking also, I have already told you this example. Okay, तो banking में भी अभी आप घर बैठे ही आपका transactions देख सकते हो कि कब कितना पैसा मैंने विड्रॉ किया था, कब क्रेडिट कार्ड का पैसा कट होता है, या फिर कब आपके इंश्योरेंस का पैसा कट होता है, कब क्रेडिट हुआ, कब डेबिट हुआ, ये सब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप ऑनलाइन घर पे देख सकते हो। उसी तरह से आप पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन घर पे बैठ के। देन आपको कुछ भी बैंक का देखना है ट्रांजैक्शंस तो आप घर पे बैठ के देख सकते हो। ओके, सो ये क्यों होता है, सिर्फ डीबीएमएस के वजह से, क्योंकि बैंक वाले भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे कि ट्रांजैक्शंस आपको इजीली पता चले। ओके, so in banking also this DBMS is used. Then next, in universities and colleges, examinations are done online today and universities and colleges maintain all these records through DBMS. Students registration details, results, courses and grades, all the information is stored in a database. So now you know, आपने 10th का रिजल्ट देखा ही होगा,
ऑनलाइन आप सिर्फ नंबर डालते हो, आपका सीट नंबर, और आपको आपका डिटेल्स मिल जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिले, कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले. दिस इज हाउ, बिकॉज ये भी डेटाबेस मीन्स बोर्ड यूनिवर्सिटी ये सब डेटाबेस मेंटेन करके रखता है स्टूडेंट्स का. ओके, सो ये रोल नंबर वाइज, सीट नंबर वाइज एवरीथिंग इज मेंटेन इन द डेटाबेस. दैट्स व्हाई यू कम टू नो. जब पेपर करेक्शन हो जाता है तो वो रिकॉर्ड वो सीट नंबर में एलोकेट किए जाते हैं वो मार्क्स. ये सीट नंबर को ये मार्क्स मिले तो वो डेटा फीड किया जाता है डेटाबेस के अंदर. इसलिए आप कहीं पे भी रहोगे तो भी आपको आपका मार्क्स पता चल जाता है. Only because of what? Only because of the database. Okay, now here we have seen. Now let us see the another example is credit card transactions. For purchase of credit cards and all other transactions are made possible only by DBMS. A credit card holder knows the importance of his information that all are secured through DBMS. So credit card transaction means if you want to purchase a credit card or if you want to do any transactions of credit card, that also we can do by using the DBMS. Why? Because DBMS knows the security, how to secure the. So जो भी साइट रहेगा, जो भी कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, उन लोग की अपनी खुद की साइट रहेगी. सो बाय दैट वे दे आर गोइंग टू सिक्योर अवर इंफॉर्मेशन. सो इन दैट वे वी कैन do the credit card transactions. Okay, then lastly we are going to see social media sites. Social media sites, we all are in social media website to share our views and connect with our friends. Daily millions of users sign up for this social media accounts like Facebook, Twitter, etc. So in social media sites also our database is used. वहाँ पे भी database का use होता है. That's why see in Facebook you're daily getting that people you may know. This is why, because based on your database. जैसे कि उन लोग आपका database देखते हैं कि अगर आपने स्कूल डाला रहेगा या कॉलेज डाला रहेगा या फिर किस ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं आपने ये डाला रहेगा, तो आपको वो रिलेटेड स्कूल का बताएगा कि हाँ ये स्कूल में ये लोग भी थे, तो क्या आप इनको पहचानते हो, या फिर ये कॉलेजेस में ये लोग थे तो क्या आप इनको पहचानते हो, या आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे ये भी पर्सन वर्क करता था, क्या आप इनको पहचानते हो. लाइक वाइज दिस इज बिकॉज ओनली ऑफ द डेटाबेस. आपके डेटाबेस को देख के ही वो दूसरे का भी डेटाबेस चेक करेगा और आपको वो फ्रेंड लिस्ट में दिखाता है कि पीपल यू मे नो. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? डेटाबेस. वॉट एवर रिकॉर्ड यू आर कीपिंग इन योर Facebook, all that is recorded by the database, and then that depending upon that they are going to show you the related friend list. Okay, so this is not the least, this is not only the least कि सिर्फ यहाँ पर ही DBMS यूज होता है ऐसा नहीं है. इसके अलावा बहुत जगहों पर भी यूज होता है. Nowadays everywhere you can see the database is used. In every office database is there. In pharmacies or pharmacy also you can see the database is there. In hospital also database is there. That's why they can maintain the records of all the patients. Okay, OPD patients and all these things will be mentioned. Not only OPD, so all patients data they are going to maintain. Okay, so hospitals में भी होता है उसी तरह से सभी जगह पर everywhere DBMS is used nowadays to keep the record of this. But one more thing, it is not like that only the database of human beings is maintained. ऐसा नहीं कि सिर्फ इन peoples के ही database या फिर सिर्फ इंसान के ही database maintain किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है. Even of any नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो डेटाबेसेस मेंटेन. अगर कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके बारे में अगर उसको डेटाबेस में रखना है, सो डिटेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट और उसका भी डेटाबेस हम लोग बना सकते हैं. सो एक कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनाए, कितने प्रोडक्ट्स में क्या नया खरीदा या क्या बेचा, सो ऑल द डेटाबेस वी कैन मेंटेन इट. ओके, सो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग ने लाइब्रेरी में हम लोग ने ह्यूमन बींग्स का नहीं बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया था. So similarly other records also you can maintain in the database. Okay, so this is all for today. In today's lecture we have seen what is database, then we have seen the DBMS, applications of DBMS, and again we have seen the difference of data and information. So this is all for today.
Thank you for watching this lecture. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.